Good morning, class 11th. Today we'll be discussing about a new chapter, and the name of the chapter is Binomial Theorem. This is chapter number 9, and I hope you'll understand this chapter because this chapter is kind of related to the previous. This might sound to you guys as a new topic, binomial theorem, but once I introduce you this chapter, you will say, "Oh man, this is quite simple." है ना? Everything when we are able to understand that it becomes simple, है ना? And if you're not able to understand the topic, it becomes harder for us. So once we get to know the concept of the chapter, then we'll be moving on to do some questions on this topic. Okay, but right now we'll be talking about what does the chapter has to tell us, or how is it related to my previous studies that I have done in the previous classes or the smaller classes. So when we go through this chapter, binomial theorem, the very first thing that comes to mind is, we have been studying about this x plus y ka square, x minus y ka square, x plus y ka whole cube, x minus y ka whole cube. We have studied about all this, the formulas of this x plus y का square, x minus y का square, x plus 3 का square, x minus y का square. We have studied about this, and you will agree with me that we have discussed about this. Do you guys all agree? I hope all of you guys agree. So when I put the formula for this, what is the formula that for this that's going to come? X square plus 2x 2xy plus y square. Okay, for this x square minus 2xy plus y square, isn't it? So this is the formula, and same for this. For this it's going to be x cube, and then plus 3a square b, and then plus 3a b square, and then plus y cube. This is the formula, and for this I'm writing it over here. It's same as this, x cube 3a square b 3ab square y cube. The only thing is alternative signs are negative. This is plus, this is negative, this is plus, this is negative. That's it. So we have done this, and when I write this down, slowly if I write this down like that, and I'll come to a conclusion कि भाई वैसे जब बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं मैं, और मैं आपको इस टॉपिक के समझने में मदद करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी तक हमने क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब. नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग, और आपने ये भी सॉल्व कर रखा 99 का होल स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व दिस? 101 का होल स्क्वायर, हाउ टू सॉल्व दिस, or cube. So you used to do 100 plus 1 ka whole square, isn't it? And then you used to put this in the formula of this and then solve that. Now in this chapter what we'll be doing, हम लोग ये करेंगे कि हमें तो अभी तक पावर 2 या 3 तक सिखाई गई है, but I'll tell you a technique, or this book people are also going to help you out in order to so that you guys can solve this type of question, x plus y का whole to the power 7 या x plus y का whole to the power 100. We'll be able to solve this and make a formula for this as well, because till now we just know the formula for certain algebraic expressions, but later on we'll be able to, after you're done in this chapter, after you have done this chapter, you'll be able to understand कि हाँ यार, I can also find the formula for this, and I can also find the formula for this. And when you're teaching the other kids, smaller classes kids, it's going to be very easy for you to understand कि ये तो भाई कुछ भी नहीं है. I can make a formula for this as well. I hope you guys are getting it. But you know what? I really want to explain you something, and I really want to go stepwise. So किसी की भी power की 0 होती है, किसी का भी power 0 होता है. What's your answer? If there's a power 0, what is your answer going to be? जब भी किसी की power 0 होती है, your answer is 1. और अगर किसी की power 1 है, तो it comes as it is. And for this, I know the formula: a square plus 2ab plus b square. What about this? A cube plus 3a square b plus 3ab square and plus b cube equals to
For this, the answer is going to be a to the power 4 plus 4a cube b plus 6 6a2 b2 plus 4a b3 प्लस b की पावर 4. ठीक है. नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने बुक से देख के लिखा. सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर ने पहले से रट्टा मार रखा है. सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि I have, there's a book open in front of me, which is true. There's a book open in front of me, but I didn't. If I would have solved with looking this in the book, I would have, continuously written, looked at the book and continuously kept writing. But I thought before writing. Did you see? I was thinking before writing. Now, also, for example, let's say if I have to write for a plus b to the power 5. I'll be thinking about it. I know the very first one and the last one is going to come this. A to the power 5 and b to the power 5. And then I'll be start writing 5a4 b plus 10a 3 b की power 2 plus 10 a2 b की पावर 4 b की पावर 3 प्लस 5 a b की पावर 4 plus b5. So I am thinking and writing. If you are able to notice that, how is it coming? I really want you guys to understand 2 or 3 things in this. सबसे पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सबसे पहली बात इस टॉपिक से, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाटएवर द इंडिसेस इज, व्हाटएवर द पावर इज, उससे बढ़कर एक ज्यादा एक्स्ट्रा टर्म होगा. तो अगर यहाँ पे 1 है पावर, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2. यहाँ पे 0 पावर है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1. यहाँ पे 1 पावर है, तो कितने टर्म्स है? 2. इसमें 2 पावर है, तो कितने टर्म्स है? 1 2 3. इसमें 3 पावर है, तो कितने टर्म्स है? 1 2 3 4. सो यू नीड टू कीप इन माइंड n कैन बी द नंबर ऑफ पावर, n कैन बी द पावर. ओके, n पावर मान लो, और जो उसके टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे? एक ज्यादा. जो भी मेरी पावर होगी उसमें से एक ज्यादा. जैसे ये 5 है, व्हाट इज द इंडिसेस? Indices is 5. So how many terms are going to come? 1 extra. That's 6 terms are going to come. 1 2 3 4 5 6. That is the very first thing you need to remember, and the very first 4 questions in your exercise are helping you guys to understand कि how to find. बस यही पूछ रहे हो लोग, how many terms are going to be there. थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है वहां पे, बट 1 से 4 तक आपके पास ये क्वेश्चन है. टेल, वो एक क्वेश्चन दे देंगे, a² प्लस 5b प्लस c 3. बताओ कितनी टर्म्स आएंगी इसमें. So they are going to give you questions like this, and I have to use a certain formula to just say कितने terms आएंगे इसमें. Okay, so that is the very first thing you can remember. Okay, now you guys can also notice that the very first term and the last term, the coefficient of the very first term and the last term is 1. Can you notice that? First term and last term, the coefficient is 1. First term and the last term, coefficient is 1. First term and the last term, coefficient is 1. First term and the last term, coefficient is 1. Coefficient मतलब उस algebraic या फिर वेरिएबल को छोड़ के क्या नंबर आ रहा है वो देखो आप. 1 1. Can you see? Okay. अब अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे, किसी और वाले में ऐड नोटिस करते हैं, बड़े वाले में, यहाँ पे a की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है. a4 था, फिर a3 हुआ, फिर a2 हुआ, फिर a1 हुआ, फिर a था ही नहीं. पर b की वैल्यू पहले b था ही नहीं, फिर b1 हुआ, फिर b2 हुआ, फिर b3 हुआ, फिर b4 हुआ. हाईएस्ट पावर 4 ही रहेगी. इन दिस ऑल्सो यू कैन सी. एंड ऑल्सो यू गैस कैन नोटिस, अगर यहाँ a टू द पावर 4 था, दूसरे टर्म में टोटल डिग्री मेरे पास 4 ही होगा. टोटल डिग्री का मतलब अगर इसके पास 3 है तो इसके पास 1 होगा. टोटल मिला के 4 ही बनेगा मेरा. इसमें देख लो, a की पावर क्या है? 4. मतलब टोटल पावर क्या है? 4.
टोटल पावर क्या है 4, टोटल पावर क्या है 4। अगर मेरे पास 5 वाला है तो टोटल पावर क्या है 5, टोटल पावर क्या है 5, टोटल पावर क्या है 5, टोटल पावर क्या है 5। यहाँ पे ए की पावर डिक्रीज हो रही है, A5 A4 A3 A2 A1 एंड ए है ही नहीं, एंड यहाँ बी है ही नहीं, B1 B2 B3 B4। सो इट्स वेरी इजी टू राइट। द ओनली प्रॉब्लम दैट यू विल फेस राइट नाउ कि भाई हम लोग के नंबर कहाँ से आ रहे हैं यार, नंबर कैसे फिगर आउट करेंगे। बाकी अगर मैं नंबर को छोड़ दूं और आपको बोलूं कि छोड़ दो उसको, एंड डोंट ट्राई थिंक मच अबाउट द नंबर्स फॉर नाउ, ओनली फॉर 2 minutes, देन यू विल बी एबल टू राइट फॉर a+6 ऑल्सो, है ना। सो लेट्स राइट फॉर a+6। अगर मैं आपको बोलूं a+b का टू द पावर 6, तो क्या लिखेंगे, a की पावर 6, फिर a की पावर 5 और b की पावर 1। ओके अभी कोफिशिएंट मत लिखो, चलो मैं कोफिशिएंट नहीं सिखा रहा हूं आपको। a की पावर 4 और b की पावर 2, पर टोटल मिला के 6 ही आएगा। फिर a की पावर 3 और b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर घटती रहेगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, एंड दैट्स हाउ यू राइट दिस। ओके एंड आई विल आल्सो टीच यू भाई ये कोफिशिएंट आएंगे कैसे। ओके सो दैट इज द सेकंड थिंग, दैट द वैल्यू ऑफ a कीप्स इन डिक्रीजिंग, a की वैल्यू कीप डिक्रीजिंग and b की वैल्यू और द पावर आई कैन से वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। ओके a की वैल्यू कीप डिक्रीजिंग, b की वैल्यू कीप इंक्रीजिंग, कीप दैट इन माइंड। ओके ओके दैट्स इट गाइस, आई थिंक यू गाइस वर एबल टू अंडरस्टैंड। a की वैल्यू कीप इंक्रीजिंग, b की वैल्यू कीप इंक्रीजिंग, a की वैल्यू कीप डिक्रीजिंग, ये याद रखना। और टोटल पावर कितनी होती है, टोटल पावर टोटल पावर टोटल पावर उतनी ही रहेगी जितना इंडिसेस दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अगर 5 है तो टोटल पावर 5 ही होगी, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5 एंड 5। सो हर टर्म में टोटल पावर 5 ही होगी अगर मेरे पास इंडिसेस 5 दे रखा है तो। सो दिस आर द 3 थिंग्स दैट वी डिड लर्न। फर्स्ट, कितनी पावर होगी या कितने वेरिएबल्स होंगे, जो भी पावर है एक ज़्यादा, ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज। थर्ड क्या है, टोटल पावर कितनी होगी आपके पास 5 होगी। ओके लेट्स टॉक अबाउट द कोफिशिएंट्स। ओके जब पावर 0 है, a + b की पावर 0 है, तब क्या आएगा मेरा 1। कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं और पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ this as well. Okay we can have a look, just a second. Okay so I have this right now over here. So जब मेरे पास ये पावर लिखी है या इंडेक्स you can say of the binomials. Okay so 0 1 2 3 4 जब इतनी पावर्स होंगी तो क्या क्या आएगा। सबसे पहला कोफिशिएंट क्या आएगा 1, फिर दूसरा क्या आएगा 1 1, a का कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट क्या है 1। फिर यहाँ देखो जब क्यूब आएगा क्यूब, तब सबसे पहला कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरा कोफिशिएंट क्या आएगा 3, मेरी दोनों उंगली देखते रहो, है ना। दूसरा क्या है 3, फिर क्या है 3 और फिर क्या है 1। और जब 4 आएगा तो पहला कोफिशिएंट 4 है, दूसरा सॉरी पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे और जब 5 आया तो 1 है, 5 है, 10 है, 10 है, 5 है और 1 है। और जब 6 है 1 है, 6 है, 15 है, 20 है, 15 है, 6 है, 1 है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर वी आर नॉट गेटिंग दिस। हमें पता लग गया कि आपने ये टेबल से कुछ करा या देखा दुखा, पर आप हमें बताओ हमें क्या करना है। मैं बोलूँगा बेटा आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये 3 कहाँ से आ रहा, 3 ये 6 कैसे आ रहा। यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक कि पहला और आखिरी तो 1 ही होगा, कोफिशिएंट पहला और आखिरी 1 होगा, पहला और आखिरी 1 होगा। पर करना क्या है, जो बीच का होगा तो इनको ऐड कर देना, ऊपर दो वालों को ऐड कर देना, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म्स थी तो 3 जगह है आपके पास। जब हमारे पास कितना होता है तो मैं क्या लिखूँगा इसमें, इफ आई हैव टू राइट दिस, सो हाउ मेनी टर्म्स विल कम n + 1, सो इट्स गोइंग टू बी 2 + 1 3 टर्म्स विल कम। सो 3 जगह है मेरे पास, इसमें 4 टर्म्स विल कम। सो 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स कमिंग। पहला और आखिरी का कोफिशिएंट 1 है। अब ये 3 कहाँ से आया देखो ध्यान से, 1 + 2 ऊपर के जो प्रीवियस वाले हैं, जो ये ट्राइंगल के कोना है, ये कोना है, इसके जो 2 कोने हैं उनको ऐड कर दो, तो 1 + 2 3। ये 3 कैसा है, इसके 2 कोने हैं उसको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा ये देखो 10 कैसे आया, 10 कौन से कोने से, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल,
इसमें बैठ इसके नीचे आ रहा है, तो इन दोनों कोनों को ऐड करके तब आया ये, इन दोनों कोनों को ऐड करके तब आया, इन दोनों कोनों को ऐड करके तब 5 आया, 4 + 1 5। ठीक है, तो ऐसे करते हैं और इसको बोलते हैं हम पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल डिस्कवर्ड दिस एंड बाइनोमियल के ऊपर, सो इट्स कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। इज दैट ओके? तो अगर आपको बाय चांस एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग ये पास्कल ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। पर अब आप सोचोगे सर हम ये ट्राइंगल कब तक बनाते रहेंगे, क्या हमें रफ में शीट में ये पास्कल ट्राइंगल बना के रखना पड़ेगा? आई विल से नो, दिस पास्कल ट्राइंगल इज जस्ट फॉर टीचिंग यू गाइस कि होता कैसे है या कैसे आया है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा जिसमें आपको रट्टा मारना पड़े। तो तभी इंट्रोड्यूस होता है बाइनोमियल थ्योरम, और कौन सा चैप्टर मदद करने आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम को? कौन सा चैप्टर? हमने इससे पहले एक चैप्टर किया था कॉम्बिनेशन, permutation and combination. So combination is going to help binomial theorem in order to get the equation. How? For example like this, a plus b की पावर 7 है, a plus b की पावर क्या है? 7 है। ओके, just keep this in mind, or let's take a smaller one first. a plus b की पावर 5 है। ओके, so if I have a plus b की पावर 5, so what I'll do, I'll write combination of 5 and 0 first, then प्लस, अभी मैं बस कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन होंगे कोफिशिएंट लिखने के लिए ही होंगे, बाकी आपको पता है a की पावर 5 आ जाएगी यहाँ पे, फिर a की पावर 4 और b की पावर 1 आ जाएगी। पर मैं कोफिशिएंट के बारे में, और इसका क्या कोफिशिएंट होगा, तो ये r जो है, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला था n r, कॉम्बिनेशन ऑफ n r, ये चलता रहेगा और यहाँ r इंक्रीज होता रहेगा, और जो ये है n ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, प्लस c5 2 प्लस c4 सॉरी 5 3 प्लस c5 4 प्लस c5 5, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको चलते रहना है। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ तो a आ गया, a की पावर 5, a की पावर 4 b, यहाँ क्या आएगा a की पावर 3 b2, और यहाँ पे a की पावर 2 b3, यहाँ पे a की पावर 1 b4, और यहाँ पे b की पावर 5। ठीक है, तो मैंने कोफिशिएंट भी लिख दिया रेड पेन से, और मैंने वेरिएबल्स तो आपको मैंने शुरू में ही सिखा दिया था कैसे लिखने हैं। अब करना क्या है, आपको बहुत अच्छी तरह आता है इसका फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n माइनस r और r आता है ना। तो जब आप ज़ीरो करते हो, किसी का भी ज़ीरो लेते हो, 0 बार लेते हो, तो उसका आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। तो पहले वाले का आंसर तो मुझे पता लग गया क्या होगा, a की पावर 5 ही आएगा इंटू 1 ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस इसका क्या होगा, अब ध्यान से देखना, 5 माइनस 1 और 1, तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 5। तो क्या कोफिशिएंट आ गया आपके पास? 5, और a की पावर 4 b। ठीक है, ये देखते हैं, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 3 एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कैन गेट कैंसल्ड आउट, आई एम सॉरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी, 3 एंड 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, तो कितना आ गया आपके पास? 10a3b2, और आप इसको भी सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 10a2b3, और फिर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5ab4, और 5 का तो ये 1 ही होता है। तो अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी वेरी केयरफुली इन दिस, द कोफिशिएंट इज 1 5 10 10 5 1, एंड अगर आप 5 का देखो 1 5 10 10 5 1। So I don't want you to understand the Pascal triangle. Why? Because I really want you guys to understand कि हम इसमें
कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट हार्ड. कॉम्बिनेशन इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल. और इतना आप कर ही सकते हो ताकि आप क्या निकाल सके, कोफिशिएंट. तो आपको मैंने दो चीज़ सिखाई है, एक तो कोफिशिएंट निकालना और एक वेरिएबल्स के साथ कैसे खेलना है. ए की पावर इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, और बी की पावर इंक्रीज होती रहेगी. बाकी आपको इसमें यही सेम फॉर्मूला लगाना है. 5 है तो 5/5 जब तक नहीं आ जाता तब तक करते रहो, कॉम्बिनेशन लगाते रहो. 8 है, 8 बार 8 करते रहो. ठीक है, इज दैट ओके? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अगर मेरे पास a प्लस बी है टू द पावर n, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? ओके, सो वी कैन राइट एज सम ऑफ n या सिग्मा r इक्वल्स टू 0 n c r, दैट्स गोइंग टू गो विद a n माइनस r एंड ऑल्सो b r. b जब तक r नहीं हो जाता, r नहीं बन जाता, और n माइनस r होता रहेगा, और r is tending towards 0, you can say. Okay, I hope you guys are getting it. R is tending towards 0 or R is tending from 0 to 1. ठीक है, so this is the formula that needs to be used. If you guys actually don't worry about the formula, you need to use this, but there will be some questions that I'll explain you, but this is what you'll be using. Okay, this is what you'll be using in some of the questions. Okay, and this is on page number 513. You guys can have a look at that in the middle of the page and you'll understand much better. Okay, okay, आपको ये फॉर्मूला तो आ गया कि a प्लस बी की पावर कुछ भी हो तो कैसे निकालेंगे आंसर. पर अगर a माइनस बी की पावर 5 हो या कुछ भी हो, हाउ टू फाइंड आंसर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द मिडल. सो जस्ट नोट दैट कि whenever there is a negative sign in the middle, what you need to do, you don't have to do anything. The only thing is, जब आपके पास like 6 terms है, 1 term 2 term 3 4 5 6, बिकॉज एक टर्म ज़्यादा होगा, तो आपको ऑल्टरनेट साइंस लगाने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट्स इट. ऑल्टरनेट साइन, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द मिडल. Okay, so I just want you guys to remember that in your mind. When there is this type of question, when there is negative sign in the middle, then you have to put alternative sign, plus minus plus minus plus minus. Is that okay? Just keep that in mind. Okay, let's do some questions from exercise 9.1. The very first question says, find the number of terms in the expansion of the following. So how many terms will come in this when I expand this? How many terms will come? And I told you n plus 1 terms are gonna come. But how to figure out, because वहाँ तो हमने दो terms की बात करी थी, जब दो वो है ना, तो हमेशा याद रखना, whenever there are two terms, of which formula to use, that is n plus 1. But I can solve this. So ये क्या हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर टू द पावर 7. तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और ये जो फॉर्मूला आएगा ये इसके रूप में आएगा, x 1 plus x का होल स्क्वायर, एंड 7 इज ऑलरेडी वेटिंग आउटसाइड. सो 1 plus x होल टू द पावर 14 आ गया. सो व्हाट्स माय आंसर, n plus 1, दैट इज 14 plus 1, देयर आर गोइंग टू बी 15 टर्म्स ऑल टुगेदर. Okay, so that's how you'll be doing this question. So there's a question for me, and the question says, question number 5, it says, by using binomial theorem expand. I have to expand by using the binomial theorem, and you know very well the power is 5 2x plus 3y whole to the power 5. And whenever I have this, I have to write c 5 0 and a, that is 2x to the power 5 plus c5 1 2x to the power 4 into 3y single plus c5, and then this is going to be 2 and 2x to the power 3 plus 3y to the power 2 plus c5 3 2x to the power 2 into 3y, this is into 3y to the power 3 plus c5 to the power c5 4 2x to the power 4, yes,
this is going to be 1, and 3y to the power 4 plus c5 5 3y to the power 5. Okay, now I have put the formula or whatever has been taught to me. Now if you have a look for this, this is going to be 1. Okay, this is going to be 5 minus 1, so this is going to be 2 into 2 into 2 into 2, that's going to be 32 x to the power 5. Okay, plus this is going to be 5. जब इसका फैक्टोरियल ढूंढूंगा मैं, आप रफ में भी ढूंढ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 1 4 factorial, you will get this answer as well, into 16x to the power 4 into 3y plus this is going to be 10 into 2 8 x cube into 9y, and then plus, and keep solving it like this, and then you can add or multiply them, and then it's going to be a expanded form of this whole theorem. Okay, so that's how you'll be doing this question as well. Okay, let's have a look in question number 6. Question number 6. Question number 6, 99 to the power 5. Okay, so this is 99. First you will be putting in the form of a plus b, that's going to be 100 minus 1 to the power 5. 100 minus 1 to the power 5, and then you'll be putting the combinations formula, a5 5 and 0, and you'll be taking 100 to the power 5, and you'll keep solving it like that. But always remember यहाँ पे माइनस है तो पहला प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस आएगा, and then फिर प्लस फिर माइनस. Okay, so that's how you're gonna do question number 6. Let's see question number 8. It says which number is larger? Okay, and they have given two numbers, 1.1 to the power 10,000 or 1,000. Which number is larger? So what I'm going to do, I'm going to solve this part. So how can I solve this part? 1 plus 0.1 to the power 10,000. Can I write it like this? Yes, I can. So I'll solve this part, whether how much is this coming. Now when I solve इसकी power 1 की power 1000, क्योंकि पहला वाला यही 10,000 यही आएगा, प्लस दूसरा वाला क्या आएगा 0.1, okay, into 10,000, plus more positive numbers are going to come because there is a plus sign in the middle. There are going to be more positive numbers. You all agree with me. Now इसका तो जो पावर 10,000 तो 1 ही होगा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, प्लस मोर पॉजिटिव नंबर. अब आप ये देखो 1 प्लस 1000 कितना हो गया, 1001, और भी पॉजिटिव नंबर आने हैं. सो टेल मी, ये 1000 है और ये 1001 है, सो विच वन इज बिगर? दिस वन इज बिगर. So you'll solve it like that, okay, that this one is bigger than this. Is that okay? I hope you guys understood that this one is bigger than 1000. So that's how you have to just show this. Okay, I hope you guys understood. I didn't want to make this a long video, but I hope you guys did understood. Thanks for watching this video. Have a great day, everyone.